प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ, सारा भारत देश हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। शान इसकी जाने पाए, चले जान भले ही जाए, शान इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, सत्य की विजय कर दिखलाए, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। Good morning everybody. Let me wish you happy Independence Day. Today we are celebrating Independence Day, and as a teachers we have a big responsibility. We all know that independence we have received not due to the grace of any others, but only due to the supreme sacrifice of our leaders and freedom fighters. So today I would like to pay my salute to all freedom fighters, all great leaders, and all brave soldiers, those who are struggling at the difficult situations, those who have lost their lives. I would like to pay a tribute to them. Only due to their sacrifice we are happily staying inside the borders. We all know that this is a pandemic situation. We are facing a big challenge. Corona is really a big challenge, and I hope that definitely the solution will come, and I am sure that some solution will come from our country also. Today our Honorable Prime Minister announced that 3 vaccines trial is started, and our scientists are struggling very hard. They are doing lot of hard work to get the vaccines and medicines. I pray to Almighty to give wisdom and strength to our doctors, health workers and scientists to overcome these pandemic situations. Dear teachers, we know that we have to compete with the developed countries. We have so many problems. There is tension in borders, there is a technology competitions. We have to be first in all types of technology. Though India have reached advancement in all technology, now we are not far behind in space technology, information technology, medical and science technology.
but still we have challenge. Recently, NP is launched, and I hope that all teachers have gone through the national policy of education. Our challenge is big. We have to produce good scientists, good doctors, good engineers, good lawyers, good professors, good researchers. So these scientists, good soldiers, good administrators, good officers, India cannot be developed. So I believe that the teachers are playing the big role in the change of society. So I request all of you, though situation is very difficult, though corona is always creating pressure on us, but with the determination, with our hard work, with our dedications, definitely we are going to teach our students in a well planned manner, and we can make them good players, good scientists, good doctors. So this is my appeal to all of you in this occasion. Please do hard work with your dedications to make the future of our students bright. Once again, I would like to wish you happy Independence Day. Stay at home, stay safe. Thank you. ओके, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय वेंकटेश्वर के प्रांगण में सभी मौजूद सभी सम्मानित शिक्षकगण, आप सभी को मेरी तरफ से 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से विदित है कि ये आज जो राष्ट्रीय पर्व जो हम यहाँ पर मना रहे हैं, इसकी एक बहुत बड़ी कुर्बानी हमारे देशवासियों ने दी है। उसके बाद हमें ये आज़ादी बहुत बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने ये हमें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है, वो बहुत ही गर्व के लिए है कि हम विश्व में आज जिस स्थिति पे खड़े हैं, वो सभी जितने भी विकसित देश हैं हमारी आज और देख रहे हैं। आप सभी लोगों को इस तरह से पता है, हम जिस आज के विश्व पटल में जिस तरह की समस्याएं हैं, उसमें भारत का बहुत बड़ा अग्रिम रोल रहा है और हम इसमें अपनी चुनौतियों के साथ जूझते हुए आज अपने आप को अपने एक अच्छी जगह पर पाते हैं। स्वतंत्रता दिवस जो आज हम यहाँ पर मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसकी जितना भी आप लोग अच्छी तरह से विदित है कि जब 1947 में आज़ादी की, उस समय हमारे पास संसाधनों की बहुत ही अभाव था। उस समय हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन आज हम देख सकते हैं हम सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरह से अग्रिम योगदान रहा है, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे डॉक्टरी के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में हम बहुत अच्छी तरह से करें। इसके पीछे एक जो सबसे बड़ी है हमारे शिक्षक, हम ही देश के नागरिकों को बनाते हैं और एक राष्ट्र निर्माण की मेन भूमिका है, वो किसी एक जन से नहीं, किसी एक व्यक्ति से नहीं, वो सारे देशवासियों से बनती है। और देशवासी और शिक्षित बनाने का कार्य जो हम लोगों को सौंपा गया है वो शिक्षक हैं। इसलिए हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक राष्ट्र निर्माण में। वो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग उस जिम्मेदारियों को समझते हुए इस देश में अपना योगदान देंगे और विश्व पटल में भारत की ये पताका इसी तरह लहराती है। इसी आशा और इसी कामना के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन। परमादरणीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त मेरे साथीगण, और मैं आवाज में ऑन करिए बटन है। विशेष वीरेंद्र सर, म्यूजिक सर और समस्त शिक्षकगण जो आज इस स्थिति में जो एक बहुत ही भयानक स्थिति चल रही है, लेकिन उस स्थिति में भी हम यहाँ पे आज हमारा 74वां जो स्वतंत्रता दिवस है उसको मनाने जा रहे हैं।
स्थिति ये है, हमें ऐसा लग रहा है थोड़ा अजीब, क्योंकि हम एक जहाँ हमें शिक्षक बनाया गया है, जिन बच्चों के लिए आज उन बच्चों की थोड़ी कमी हमें बहुत ही महसूस हो रही है, क्योंकि आज उन बच्चों की जगह में शिक्षक ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस स्थिति में भी हमें जैसी स्थिति है उसका हमें मुकाबला करना चाहिए, हमें उसके लिए लड़ना चाहिए। और जो हमें देश को स्वतंत्रता मिली है वो हमें जिन्होंने दी है वो तो दे के चले गए, लेकिन हमारा दायित्व बनता है जो हमें कुछ मिलता है, जो हमें पूर्वजों से या हमारे पूर्वज जिनसे हमें स्वतंत्रता मिली है, हमारा दायित्व है उसमें कुछ हम और बढ़ाएं, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि जिस स्थिति में देश को संभाला गया था वो स्थिति बड़ी ही दयनीय थी, लेकिन आज हमारा देश भारत, जिसे हिंदुस्तान, इंडिया जिन नामों से आज विश्व में उसकी एक अलग पहचान है, विभिन्न संस्कृतियों का एक मिश्रण है। जहाँ आप देखोगे ऐसा कोई देश नहीं है वहाँ पे इतनी संस्कृतियाँ आपको एक स्थल पे मिल जाए। लेकिन आप भारत में जाओगे, जिस कोने में जाओगे, जिस दिशा में जाओगे, वहाँ आपको विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का मेलजोल, लेकिन विभिन्नता, एक सूत्र, एक मंत्र है हमारा, विभिन्नता में भी एकता। यानी इतनी विभिन्नता होते हुए हमारे अंदर बड़ी ही एकता होती है। तो ये हमारे लिए बड़ी ही गर्व की बात है, इसलिए दुनिया में भारत को जाना जाता है। आज हम इस स्थिति में जो मनाने जा रहे हैं उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।